Hello everyone. Today we will discuss about our next one concept of chapter number 10, which is the budget deficit. Up to the previous topic we have studied about the concept of government budget, objectives of it. Then we have studied about the components of government budget, in which the components of budget in which the budget receipts and the budget expenditures were done. Now the next one topic is there, the budget deficit. Deficit refers to कि जब हमारे ओवरऑल हम कहें कि खर्चे ज्यादा हो जाते हैं हमारी रिसिप्ट से, हमारी इनकम से, एज लाइक सिमिलर बजट डेफिसिट, कि जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स जो है इट जस्ट एक्सीड्स द रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट. Here are mainly the three types of the government budget. Government deficit, budget deficit. The revenue deficit, fiscal deficit, and the primary deficit. Now we will discuss about what is the meaning of these three different types of budget deficit, the types of budget deficit, and how we can measure it. So the first one concept is there, that what is the budget deficit? बजट डेफिसिट विच इज ऑल्सो नोन एज द गवर्नमेंट डेफिसिट, इसमें मेनली क्या होता है दैट दिस इज अ सिचुएशन इन विच द बजट एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन द बजट रिसिप्ट्स, की जितनी भी रिसिप्ट्स है गवर्नमेंट की वो क्या हुई, ज्यादा हो गई किससे, सॉरी, जितने भी एक्सपेंडिचर्स है गवर्नमेंट के वो क्या हुए, इट इज exceeding the amount of the entire receipts of the government. And the main thing is there that these receipts included the both kind of nature of receipts, either the revenue or the capital, as well as the expenditure also included the both of the expenditure, the revenue expenditure and capital expenditure. Okay, so simply here the budget deficit is equal to total expenditure, in which the revenue expenditure plus capital expenditure minus total receipt, in which the revenue receipts and capital receipts. This is the actual way to calculate the budget deficit. Now the question arises, how many types of the budget deficits are there? So as per the government budget, we can say that there are mainly three types of the budget deficit. Three types, in which the first one is the revenue deficit, second one is the fiscal deficit, third one is the primary deficit. तो पहला हम स्टडी करेंगे, दैट इज द रिवेन्यू डेफिसिट. रिवेन्यू डेफिसिट एज पर द नेम इंडिकेशन, रिवेन्यू है तो मींस इसमें कौन सी आइटम्स होंगी, ओनली रिवेन्यू नेचर की आइटम होंगी. सो रिवेन्यू डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ, डेफिसिट वी नो वेरी वेल कि एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रिसिप्ट. तो एज इट इज अगर रिवेन्यू डेफिसिट है तो वहां पर सिर्फ रिवेन्यू नेचर की आइटम इंक्लूडेड है, देन वी कैन कॉल revenue deficit is the excess of revenue expenditure over revenue receipts. तो revenue deficit क्या हो जाएगा, revenue expenditure minus revenue receipts. Okay, now a small topic is there, that the implications means which kind of the impacts of this particular deficit will be there. कि suppose अगर ऐसा कोई deficit economy में आता है तो इसको रिमूव करने के लिए, इसको रिड्यूस करने के लिए क्या क्या कोशिश की जाएगी, क्या इसके इम्पैक्ट आ जाएंगे, क्या इफेक्ट आएगा, कि इसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स अडॉप्ट करेगी. इनिशियली वी कैन से कि अगर अगर एक पर्सनल लाइफ में, एक फैमिली में ऐसी कोई प्रॉब्लम आए कि सपोज किसी मंथ आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो आपकी रिसिप्ट से ज्यादा हो गए, देन व्हाट विल यू डू. इनिशियली जो सबसे पहला स्टेप जाएगा उसमें ये ट्राई किया जाएगा कि हम अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, कि अल्टीमेटली उसको रिड्यूस करो सो दैट नेक्स्ट मंथ हमारा बैलेंस जो है वो बराबर हो जाए. अदरवाइज अगर इससे काम नहीं होता, सपोज फिर भी पैसों की जरूरत है, तो क्या किया जाएगा, बोरो किए जाएंगे, किसी से भी बोरो कर लिए जाएंगे पैसे. अब इससे भी काम नहीं हो पा रहा सपोज, तो फैमिली लाइफ में थर्ड वन स्टेप आ जाता है कि किसी ना किसी एसेट्स को सेल ऑफ कर दिया, गोल्ड को सेल कर दिया, कोई और चीज है उसे सेल ऑफ कर दिया इन ऑर्डर टू गेट द मनी.
So as like similar, we can call that the government also tries to adopt these kinds of steps in order to reduce the revenue deficit in the economy. अब revenue deficit है तो सबसे पहले गवर्नमेंट क्या ट्राई करती है? They just try to cut in its expenditure. अब expenditure वो किस पे कट करेगी? different welfare programs के ऊपर, ओके okay? और इससे अल्टीमेटली क्या इम्पैक्ट आता है? सोशल वेलफेयर कम हो जाता है, क्योंकि मेनली जो एक्सपेंडिचर रिड्यूस हुए वो सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम्स के ऊपर हुए। तो वहां पर किस पे इम्पैक्ट आएगा कि सोशल वेलफेयर प्रोग्राम के ऊपर पैसा कम खर्च हो रहा है, तो इट विल अल्टीमेटली इफेक्ट द सोशल वेलफेयर। सेकेंड वन, द गवर्नमेंट में ट्राई टू रेज द फंड्स थ्रू द बोरोविंग। ओके, अब वो कहीं से भी ले सकती है, बट अल्टीमेटली जो बोरोविंग्स होती है वो हमेशा एक ओवरऑल कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। It will lead to the raises in the liability of the government as well as ये गवर्नमेंट की जो क्रेडिट वर्दीनेस है कि एक इमेज है, एक रेपो है मार्केट के अंदर, ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में, ये उसको कम कर देती। आफ्टर दैट द थर्ड वन ऑप्शन, मे बी गवर्नमेंट क्या करे? डिसइन्वेस्टमेंट भी करे। डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स कि अपने जो पब्लिक एंटरप्राइजेस के शेयर्स हैं दैट विल ऑल्सो बी सोल्ड आउट, कि चाहे वो उसको प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को या इंटरनेशनल मार्केट में कहीं पे भी सेल ऑफ करे, कि जो ओनरशिप है पब्लिक एंटरप्राइजेस की उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू द अनदर एंटरप्रेन्योर। सो दीज आर द मेन थिंग्स इन विच वी कैन से कि the government will try to do or try to use these kinds of ways in order to reduce the revenue deficit. So three ways of managing revenue deficit is simply borrowing from the general public can be there, RBI or the rest of the world. Second one is the disinvestment. Disinvestment कैसे होगी? By the way of selling its ownership to the public of the public enterprises, and cut in expenditure means कि जो subsidies government दे रही है उसको particularly cut किया जाएगा. Our second one concept is there, that is the fiscal deficit. फिस्कल डेफिसिट में आपने बहुत ध्यान से एक चीज समझनी है। देखो कि हमने बजट के कंपोनेंट में क्या स्टडी किया, दैट ऑल द बजट रिसिप्ट्स एंड ऑल द बजट एक्सपेंडिचर। अब बजट रिसिप्ट के अंदर हमने एक कंपोनेंट स्टडी किया था बोरोविंग्स। अब अगर हम अपनी असेट्स को सेल करते हैं सपोज, तो असेट्स को सेल करने के बाद हमें उसे वापस नहीं देना किसी को, राइट? बट बोरोविंग एक ऐसी चीज है which will be paid in future at any point of time, कि एक पर्टिकुलर टाइम होगा, चाहे कितने भी टाइम है, आपको उसे रीपे करना ही करना है, वापस पे करना ही करना है। इन दीज काइंड्स ऑफ स्टेट इन ऑर्डर टू, अब अगर हम कहें कि हमने बोरो करके पैसा ले लिया है, तो आप उसको ये नहीं कहेंगे कि वो आपकी इनकम हो रही है या आपको रिसिप्ट हो रही है। गवर्नमेंट अगर बोरो करके पैसा ले रही है, उसके पास रिसीव हो रहा है, इट डजंट मीन दैट इट विल लीड टू द एक्चुअल मनी रिसिप्ट, कि ये तो एक ऐसी मनी रिसिप्ट हुई जो इमरजेंसी के टाइम पे ली गई है, तो उसे वापस देना ही देना है किसी भी टाइम पे। इन दिस काइंड ऑफ स्टेट वी कैन से दैट कि फिस्कल डेफिसिट में हम क्या करते हैं, हम जो भी हमारा डेफिसिट कैलकुलेट करेंगे वो बोरोविंग्स के अलावा कैलकुलेट करेंगे। तो फिस्कल डेफिसिट क्या हो गया? इट इज द एक्सेस ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स बट ओनली अदर देन द बोरोविंग। कि फिस्कल डेफिसिट में, अब रिवेन्यू डेफिसिट में क्या था? ओनली रिवेन्यू नेचर की आइटम थी। फिस्कल डेफिसिट में नो डाउट दोनों नेचर की आइटम होंगी, इधर इट इज द ऑफ द रिवेन्यू नेचर और द कैपिटल नेचर। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि फिस्कल डेफिसिट के अंदर हम क्या कहेंगे? टोटल एक्सपेंडिचर जिसमें रिवेन्यू और कैपिटल दोनों है, माइनस टोटल रिसिप्ट जिसमें कैपिटल और रिवेन्यू नेचर की दोनों रिसिप्ट्स हैं, बट बोरोविंग्स को छोड़कर, क्योंकि बोरोविंग एक ऐसी लाइबिलिटी है गवर्नमेंट की विच इज टू बी रीपेड आफ्टर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। सो वी कैन से दैट फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू budget expenditure minus budget revenue other than the borrowings. Okay, so fiscal deficit को अगर हम opposite side से calculate करने की कोशिश करें तो वो actual में borrowings के बराबर ही आता है,
क्योंकि उसमें मेनली क्या होता है कि हम अपने डेफिसिट को, गवर्नमेंट अपने डेफिसिट को किससे कवर करती है? बोरोविंग से। और बोरोविंग का अमाउंट जो है दैट इज अल्टीमेटली इक्विवेलेंट टू द फिस्कल डेफिसिट व्हिच इज नोन एज द ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। तो यहाँ पर मेनली क्या आ जाएगा? अब बोरोविंग्स कहाँ कहाँ से होती है? बोरोविंग्स जो है वो आरबीआई से भी होती है, ब्रोड से भी होती है और डोमेस्टिक कंट्री से भी होती है। तो इन तीनों की बोरोविंग्स को कलेक्टिवली हम क्या बोल सकते हैं? दैट इज नोन एज द ग्रोस फिस्कल डेफिसिट। Borrowings from RBI, borrowings from abroad, and plus borrowings from home or the domestic country, it is known as the gross fiscal deficit. So in short, the fiscal deficit will lead to the total expenditure minus total receipts, but other than the borrowings. Now the question arises, what are the implications of the fiscal deficit? अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फिस्कल डेफिसिट क्या है? बोरोविंग्स है गवर्नमेंट की। जितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा अल्टीमेटली मींस इट विल लीड टू द और इट विल शो द हायर अमाउंट ऑफ द बोरोविंग्स बाय द गवर्नमेंट। अब इसकी इम्प्लीकेशंस क्या क्या आएंगी? इम्प्लीकेशंस मींस कि क्या क्या इम्पैक्ट आएंगे ओवरऑल, कि क्या क्या इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए किया जा सकता है और इससे होगा क्या क्या। द फर्स्ट वन इज द इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल मींस कि देखिए, अगर इकोनॉमी के अंदर फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जाएगा उतनी ही ज्यादा इन्फ्लेशन को लीड करेगा। ये इन्फ्लेशन उतना ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा। कैसे? सिंपली सी कि अगर गवर्नमेंट बोरो कर रही है तो बोरो आरबीआई से सपोज गवर्नमेंट ने किया तो उससे क्या होगा? अल्टीमेटली इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी और मनी सप्लाई अगर मनी मार्केट में ज्यादा हो जाती है, increase in the money supply will lead to the increase in the prices. Borrowings from RBI increases money supply in the economy. Increase in the money supply will lead to the increase in the general price level. और अगर एक लंबे पीरियड तक ऐसा होता जाए कि आप ये लगाइए, लंबे पीरियड तक ये सिचुएशन आती जाए कि प्राइसेस बढ़ते जाएंगे, इट विल लीड टू द इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर मेन थिंग क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि बोरो किया सपोज आरबीआई से, मनी सप्लाई बढ़ गई तो इससे प्राइस कैसे बढ़े? राइट? तो मनी सप्लाई सपोज बढ़ गई, लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया, वो ज्यादा डिमांड करनी शुरू कर देंगे। अब ज्यादा डिमांड करेंगे, सप्लाई उसके कॉम्पीट में कम मिलेगी आपको, तो इससे क्या होगा? इट विल लीड टू द इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का एक ऐसा सर्कल क्रिएट हो जाएगा जो इकोनॉमी में स्टॉप नहीं हो पाएगा। दैट विल लीड टू द पर्टिकुलर सर्कल ऑफ इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन जो है फर्दर आगे अगेन इन्फ्लेशन को ही लीड करता है। तो अगर बोरोविंग्स बढ़ती जाएंगी इकोनॉमी के अंदर, इट विल लीड टू दैट काइंड ऑफ सर्कल ऑफ इन्फ्लेशन जो इकोनॉमी के लिए हार्मफुल होगा। सेकेंड वन इज द नेशनल डेट। नेशनल डेट मीन्स द सिंपल थिंग कि यहाँ पर अब क्या होता है कि नो डाउट बोरोविंग्स अगर ली है तो बोरोविंग्स को रीपे तो करना ही करना पड़ेगा। तो फिस्कल डेफिसिट अल्टीमेटली क्या करता है? देखो, नेशनल इनकम जितनी भी होती है, अब जो बोरोविंग्स ली हुई है इसका एक मेजर पोर्शन जो है वो उसको रीपे करने में यूज किया जाएगा। मीन्स नेशनल इनकम जितनी भी आएगी अल्टीमेटली इट विल बी यूज्ड इन ऑर्डर टू रीपे द पास्ट डेट, कि पिछले जो भी बोरोविंग्स होंगे उनको रीपे करने के लिए नेशनल इनकम का एक पर्टिकुलर पोर्शन यूज किया जाएगा। जिससे क्या इम्पैक्ट आता है? इट विल लीड टू द रिडक्शन इन द जीडीपी ग्रोथ, कि ओवरऑल जो हमारी ग्रोथ है जीडीपी की, अब कॉमन सी बात है, देखो अब टोटल इकोनॉमी में जितनी भी जीडीपी हो रही है उसको क्या किया जा रहा है? ज्यादा से ज्यादा जीडीपी को कहाँ यूज किया जा रहा है? जो भी उससे इनकम आ रही है उसको क्या किया जा रहा है? उससे प्रीवियस जो है वो क्रेडिट को रीपे किया जाता है। तो वहां से क्या इम्पैक्ट आएगा? अब आगे फर्दर आप जीडीपी को तब तक ग्रो नहीं कर पाओगे ना जब पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा पर्टिकुलरली। सो दिस विल ऑल्सो क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर द इकोनॉमी। आफ्टर दैट द थर्ड वन इज देयर। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है? विशियस सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन आ जाती है
कि कंटिन्यूटी में फिस्कल डेफिसिट जितना ज्यादा होता जाएगा वो जीडीपी को कम करता जाएगा, और जीडीपी जितना कम होगी वो फिस्कल डेफिसिट को ज्यादा करती जाएगी। दोनों एक दूसरे को लीड करते हैं कि देखो अगर सिंपली फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है तो जीडीपी ग्रोथ कम हो जाएगी हाई हाई फिस्कल डेफिसिट की वजह से, और हाई फिस्कल डेफिसिट अगर है, both of the things ultimately leads to the each other. GDP growth remain low because of high fiscal deficit. जीडीपी की ग्रोथ हमेशा कम रहेगी क्योंकि हाई फिस्कल डेफिसिट है, नो डाउट कि हम मेजर पोर्शन जो है वो नेशनल इनकम का किसको यूज कहाँ पे यूज कर रहे हैं, डेट्स को रीपे करने पे। और अगर जीडीपी ग्रोथ कम है तो नो डाउट फिस्कल डेफिसिट हमेशा ही ज्यादा रहेगा, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर इनकम चाहिए ही चाहिए इन ऑर्डर टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। सो बोथ ऑफ दीज थिंग्स, अगर हाई फिस्कल डेफिसिट है वो किसको लीड करेगा, लो जीडीपी को, और अगर इकोनॉमी में लो जीडीपी हो जाती है वो अगेन किसको लीड करेगी, हाई फिस्कल डेफिसिट को। तो अल्टीमेटली जो हमारा बोरोविंग्स का टर्म है, जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ता ही जाएगा। आफ्टर दैट what one of the term is there, that is the crowding out। क्राउडिंग आउट में देखिए अब यहाँ पर एक क्राउडिंग आउट इफेक्ट आता है। वहां पर क्या है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट मींस कि हाई फिस्कल डेफिसिट से क्या होता है, देखो एक इफेक्ट आएगा। इसमें कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें गवर्नमेंट अगर ज्यादा बोरो कर लेती है तो वहां पर प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर हैं, प्राइवेट पीपल जो है उनके पास फंड्स नहीं रहते, राइट? क्योंकि मेजर पोर्शन बोरोविंग्स का किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। अब हाई फिस्कल डेफिसिट हुआ, बोरोविंग्स ज्यादा है गवर्नमेंट की, तो मनी सप्लाई का ज्यादा पोर्शन किसके पास आ गया, गवर्नमेंट के पास। इट लीड टू द रिडक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल फॉर द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के पास अगर पैसा कम है तो इससे क्या इम्पैक्ट आएगा, इट विल लीड टू द रिडक्शन इन द ओवरऑल इन्वेस्टमेंट ऑफ द इकोनॉमी, कि ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। आफ्टर दैट इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी मींस उसकी रेपो, उसकी इमेज, एक क्रेडिट वर्दीनेस क्या है इकोनॉमी के अंदर एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में गवर्नमेंट की। तो अगर फिस्कल डेफिसिट हाई होता है, नो डाउट इट विल लीड टू द removal or reduction of the credibility of the government in the both market, domestic as well as international market। तो गवर्नमेंट की जो क्रेडिट रेटिंग है वो लोअर हो जाती है, कम हो जाती है, ओके। और कम होने की वजह से जो इंटरनेशनल लेवल के मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं। अब कॉमन सी बात है, अगर एक कंट्री की रेपो डाउन हो जाती है, ये कंट्री तो मोस्टली क्रेडिट के ऊपर ही चल रही है, तो उससे क्या होगा, इंटरनेशनल मार्केट में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो क्या करेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट को वापस कर लेंगे, मतलब रिमूव कर लेंगे वहां से, कंट्री से। सो इट विल अल्टीमेटली लीड टू द रिडक्शन इन द ग्रोथ ऑफ द जीडीपी। सो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या कंक्लूजन आता है कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो एक मतलब लिमिट से अबव नहीं जाना चाहिए। इकोनॉमी को नॉर्मल रखने से लिमिट से अबव जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो नहीं जाना चाहिए। जनरली इट इज टू बी, मतलब जीडीपी की अगर ये 3% तक तो होता है तो ये मैनेजेबल है। अदरवाइज अगर ये हाई होता जाएगा इट विल लीड टू द क्रिएशन ऑफ सो मेनी प्रॉब्लम्स इन द इकोनॉमी, कि ये एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर जीडीपी ग्रोथ सबसे कम हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग जाती है, और इकोनॉमी जो है वो एक ऐसी सिचुएशन में आ जाती है जहां से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हटने लग जाती है। सो फिस्कल डेफिसिट इज ए दैट काइंड ऑफ स्टेट विच शुड बी रिड्यूस्ड, कि ऐसे होनी चाहिए, उसको मैनेज कर लिया जाए, अदरवाइज इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ बिग प्रॉब्लम्स इन द इकोनॉमी। द लास्ट वन, थर्ड वन डेफिसिट इज देयर, दैट इज द प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट में देखो यहाँ पर एक चीज और ऐड कर ली जाती है। फिस्कल डेफिसिट में हमने सिर्फ बोरोविंग्स को लिया, हमने बोरोविंग्स को छोड़ दिया कि रिसिप्ट्स में बोरोविंग्स नहीं होनी चाहिए,
एक चीज अगर हम और ध्यान देंगे तो हम रिसिप्ट्स के ऊपर इंटरेस्ट भी पे करते हैं, सॉरी, हम बोरोविंग्स के ऊपर इंटरेस्ट भी पे करते हैं, राइट? सो प्राइमरी डेफिसिट में उनको क्या किया गया है, इंटरेस्ट पेमेंट्स को भी कंसिडर किया गया है। सो प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द, कि फिजिकल डेफिसिट में से अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट को लेस कर देंगे, दैट इज नोन एज द प्राइमरी डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, बोरोविंग्स, राइट? बोरोविंग्स रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, तो यहाँ पर मेनली क्या आ जाता है कि जो फिजिकल डेफिसिट है उसमें क्या हो जाता है कि बोरोविंग रिक्वायरमेंट जो है वो इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट होती है, और प्राइमरी डेफिसिट में जो आ जाता है उसमें हम इंटरेस्ट पेमेंट को कट कर देते हैं। फिजिकल डेफिसिट में तो इंटरेस्ट पेमेंट को हमने कंसीडर ही नहीं किया, बट प्राइमरी डेफिसिट में हमने क्या किया, इंटरेस्ट पेमेंट को भी रिमूव कर दिया उसमें से, कि जो हमें इंटरेस्ट पेमेंट देनी है दैट इज ऑल्सो बी कंसिडर्ड। तो प्राइमरी डेफिसिट जो है वो हमारा गवर्नमेंट की बोरोइंग को शो करता है करंट ईयर एक्सपेंडिचर और करंट ईयर रिसिप्ट्स के साथ। इसकी इम्प्लीकेशन सिमिलर बिल्कुल ऐसी की ऐसी आती हैं जो हमारी फिजिकल डेफिसिट की हैं, क्योंकि डिफरेंस सिर्फ ये आ जाता है कि जो प्राइमरी डेफिसिट है उसमें इंटरेस्ट पेमेंट का लोड नहीं लिया जा रहा, बट फिजिकल डेफिसिट में उसका लोड लिया जा रहा है। So these are the simple difference between the three deficits. The first one, revenue deficit, the difference between the revenue expenditure minus revenue receipt, fiscal deficit, budget expenditure minus budget receipt other than borrowing, primary deficit, fiscal deficit minus interest payment. इसमें मेनली बोरोविंग्स गवर्नमेंट अपने बजट एक्सपेंडिचर के थ्रू मैनेज कर सकता है। इसमें क्या करना पड़ता है कि बोरोविंग्स का लेवल होता है, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट भी उसके अकॉर्डिंग देनी पड़ती है, और इसमें क्या आ जाता है, इसमें इंटरेस्ट पेमेंट को हम कंसीडर नहीं करते। हाई रिवेन्यू डेफिसिट मेनली क्यों आ जाता है कि अगर गवर्नमेंट को टैक्स रिसिप्ट नहीं हो रहे या कुछ उसने सब्सिडीज पे ज्यादा एक्सपेंडिचर कर दिया। हाई फिस्कल डेफिसिट किस पे आता है कि ओवरऑल बोरोविंग्स ज्यादा हो गई हैं और ये जीडीपी की ग्रोथ नहीं कर पा रहा। और प्राइमरी डेफिसिट पॉइंट सिंपली बोरोविंग्स इंटरेस्ट पेमेंट को हम इग्नोर कर देते हैं। सो ultimately it also lead to the reduction in the financial discipline of the economy.